Good morning, students. I hope you all healthy and fine. So, I hope you all ready for class. So, students, in this video, it is your second lecture of chapter first. In the video, we discuss about your session 2 feedback. So, what is feedback? So, but when we starting feedback, let us recap. So, communication. Communication is defined as the interchange thought and information between two or more person to bring about mutual understanding. That means कि हमारा कम्युनिकेशन जो होता है अपने थॉट्स अपने आइडियाज़ को शेयर करके किसी भी लोगों से अपनी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर बनाना, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. सो here your first heading of communication cycle. So what is communication cycle? The communication is an essential part of our society. A society cannot exist unless the person who from a part of are able to effectively communicate with each other. That means आजकल की जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में कम्युनिकेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है. हम कम्युनिकेट करके एक दूसरे से बातचीत करके एक सोसाइटी में बहुत अच्छे से अपनी बॉन्डिंग को बना सकते हैं. लोगों से बातचीत करके, उनसे अपने थॉट्स को शेयर करके, उनसे आइडियाज़ लेकर के, अपने आइडियाज़ उनको दे करके इस तरीके से हम अपनी सोसाइटी में एक बहुत लोगों से बहुत अच्छी तरीके की बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं. सो therefore communicate cycles start with the sender who get the communication going and is complete only when the sender receive a response or feedback from the receiver. That means मान लीजिए कि एक टीचर है, तो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो इस जगह पर टीचर जो हुआ एक सेंडर हुआ और जो स्टूडेंट्स हुए वो हमारे रिसीवर हुए. तो जब टीचर अपनी क्लास को फिनिश करता है उसके बाद स्टूडेंट के द्वारा जो फीडबैक आता है, तब जाकर के हमारा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होता है. बिना इसके हमारा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता. सो हियर यू सी द फीडबैक. सो व्हाट इज फीडबैक? फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज फीडबैक. व्हेन यू डू समथिंग so someone give a message or comment on your blogs, it is called feedback. In simple means a feedback ensure that the receiver has understand the message sent by the sender. It means कि फीडबैक एक ऐसा कार्य होता है जो आपको इस बात से इंश्योर कर देता है कि रिसीवर ने जो सेंडर की बात थी, रिसीवर ने उसको क्लियरली देख लिया है, समझ लिया है. As receiver then send his interpretation back to the sender. और फिर उसके बाद जो हमारा रिसीवर है वो अपना फीडबैक जो है वो सेंडर को सेंड करता है. During feedback there is a role reverse receiver turning sender and vice versa. That means कि ये एक तरीके से प्रोसेस चलता रहता है कि जब कोई सेंडर आप एक सेंडर के तरीके कोई भी कार्य करते हैं और उस पर आपको फीडबैक मिलते हैं, देन आप कोई कार्य करते हैं और उस पर कोई फीडबैक मिलते हैं. सो एग्जांपल लेट अस लुक द फीडबैक इज सम टिपिकल कम्युनिकेशन साइकिल. तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन पर देखते हैं कि किस जगह पर फीडबैक किस तरीके से कार्य करता है. सो इन स्कूल, so student, when you take a class, so today your teachers like a sender, you teach something, you listen carefully, you understand carefully, you watch what your teachers write on the board, writing on your copy. So feedback is very important in your class, in schools and in meetings and many more. So the exam is a valued feedback for the teacher. However, no teacher will take the risk of waiting for the exam to know if students have understood their lesson. अगर
इस तरीके से समझिए कि आप मान लीजिए एक क्लास में बैठे हुए हैं और आप कोई टीचर आपको कुछ पढ़ाता है, उस पढ़ाने के बाद वो आपको कुछ होमवर्क देता है। जब आप वो होमवर्क डन करके उस टीचर को दिखाते हैं तो टीचर आपको कुछ फीडबैक देता है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, या आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, इसको इम्प्रूव कीजिए, या यहाँ पर मिस्टेक्स हैं। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो हमारी फीडबैक्स में आती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। So next one is in PowerPoint. So at the end of presentation, the speaker asks question upfront to the check if the audience has got his message. The response from the audience is the feedback. In certain cases, the speaker hand out feedback from the audience to fill in a return. That simple means I have take an example to understand it. So what is feedback in presentation? कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी चीज पर, एक आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद आप उसको अपने मैनेजर्स के साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं, और फिर उस पर जो उनका फीडबैक होता है वो यहाँ पर आ सकता है। अगर हम इसको छोटे से एग्जांपल में समझें तो फीडबैक्स क्या होते हैं। आप लोग यूट्यूब पर मूवी वीडियोस देखते हो, सो जब आप देखते हो कि हमने पूरी वीडियो देखी, उसके बाद नीचे जाते हो कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करते हो, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पर ये करना चाहिए था। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें फीडबैक में दी जाती हैं अबाउट द वीडियो। व्हेन यू सी अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल, you have many doubts and many feedback about the movie. Like movie is very actionful, movie is very entertaining. I like the hero, I like the heroine, and many things. I like this dialogues. It all will comes under the feedback. So next one is importance of feedback. So you all understand importance of feedback is very important because a good communicator will always ask for feedback because he sees feedback as the self improvement tool. Feedback also benefits the receiver. That means कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, जब भी हमें अपने कार्य के रिलेटेड, कार्य से जुड़ा हुआ फीडबैक जरूर लेना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि आप एक्चुअल में किस तरीके की गलतियां कर रहे हैं, आपको ने क्या इम्प्रूव करके उस चीज को बेहतर बना सकते हैं। दैट मीन्स कि आप कोई प्रेजेंटेशन, सब फॉर एग्जांपल आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, लैपटॉप पे एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन बनाते हुए कई सारे टॉपिक्स आते हैं अच्छे से और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कंफ्यूजन है। सो अगर आप एक प्रेजेंटेशन बनाने के बाद किसी को शो कराते हैं और जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी इन टॉपिक्स पर, उसने उनको अच्छा कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा कि उन टॉपिक्स पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो किसी दूसरे ने उसको एज अ फीडबैक के रूप में उसको क्लियर कर दिया था। दिस फीडबैक मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि आप क्लास टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया और उसमें आपको कुछ डाउट आ रहा है, आपने टीचर से पूछा तो टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया। सो ये भी एक फीडबैक के तरीके आएगा। सो feedback, there is some point of feedback related to feedback, how it is important for us. Feedback is ever present in daily activities. That means कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं या हमारा दिन का सारा कार्य जो होता है तो वहाँ पर फीडबैक कहीं ना कहीं जरूरी रहता है या होता है। जैसे कि while appears and exams are needed clear example of feedback in your day-to-day work. That means जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको आपके जो डे टू डे नोट्स हैं, डे टू डे लर्निंग है, उस पर एक जब आप किसी को टीचर सुनता है या कोई और आपसे पूछता है तो वो चीज़ें क्लियर रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फीडबैक इज अ मोटिवेशनल एंड शार्प एज अ सेल्फ इंप्रूवमेंट टूल। दैट मीन्स आपको मोटिवेट तो करता ही करता है, साथ ही साथ आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट भी कराता है। इस तरीके से मान लीजिए कि आपका ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं है जितना कि किसी और का, तो
तो अगर आप टिप्स लेते हैं, उससे पूछते हैं कि किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए या किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से हमको याद करना चाहिए, किसी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करनी चाहिए, वो चीज़ें हम किसी और से सीखते हैं, तब क्या करते हैं कि हम तो मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ। जो एक डिमोटिवेशन था बच्चों के मन में हमेशा होता है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मुझसे सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, मुझसे लर्न नहीं हो सकता है। आप क्या कर रहे हैं कि जब उसको थोड़ी थोड़ी करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तब हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता जाता है, नहीं मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट, आई एम डन इट। So feedback is a motivational and self improvement tool. Next is feedback as clear as standard post is effective listening to the receiver. That means feedback क्या होता है कि फीडबैक से हमें ये भी पता चलता है कि आपने यानी कि आपने सेंडर की जो बात थी जो बोलना चाहता था उसको बहुत ही क्लियरली तरीके से सुना, समझा। आप किसी भी चीज में फीडबैक तभी दे सकते हैं जब आप उस चीज को पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, जान लें। नेक्स्ट, फीडबैक इज द basis of problem solving. Feedback ensure a two-way communication, which is the problem solving. That means कि फीडबैक क्या होता है, फीडबैक हमको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके से भी दिखता है। लाइक दैट हमारे कोई प्रॉब्लम है, कोई हेजिटेशन है जो है हमारे अंदर, हम उसको किसी के साथ शेयर करते हैं और वो सामने वाला उस चीज का सोल्यूशन अगर बताता है तो वो भी हमारा एक फीडबैक ही होगा। बट इससे हमें क्या हो रहा है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। फीडबैक ensure equality and democracy in communication as the receiver gets a voice when he gives a feedback. That means feedback हमारी सोसाइटी में हमें इक्वलिटी का भी इक्वलिटी भी बनाती है, इक्वल बनाती है कि जब आप किसी से फीडबैक मांगते हैं तो वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। दैट मीन्स इक्वल और सभी एक तरीके का अपना अलग अलग फीडबैक अपने हिसाब से दे सकते हैं। So next topic is silent feature of effective feedback. So here effective feedback can be positive but could be constructive negative. कई बार क्या होता है कि हमारा फीडबैक इफेक्टिव तो होता है बट इफेक्टिव होने के साथ साथ वो निगेटिव भी हो जाता है। क्या होता है कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स ही ले लेते हैं हम, कई बार कुछ नहीं देता है, अच्छा फीडबैक नहीं देता है जिससे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव फीडबैक मस्ट बी स्पेसिफाइड, टाइमली एंड मीनिंगफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका जो फीडबैक होता है वो एक टाइमली होता है कि जब आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं तभी जाकर के आप एक फीडबैक उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव फीडबैक इज गोल ओरिएंटेड। दैट मींस कि जो एक इफेक्टिव फीडबैक होता है वो आपको एक गोल सेट करने में भी हेल्प करता है। आपको पता होता है कि हमारा गोल क्या है, हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, किस चीज को कैसे समझ सकते हैं। और फीडबैक के अकॉर्डिंग जैसे कि मान लीजिए कि हमें लाइफ में क्या करना होता है, हम किसी अपने बड़ों से या अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, फिर उसी हिसाब से अपना गोल सेट करते हैं। सो नेक्स्ट इज इफेक्टिव फीडबैक इज फ्यूचर ओरिएंटेड। दैट मींस कि हमारा जो इफेक्टिव फीडबैक होता है वो हमारा कहीं ना कहीं फ्यूचर डिसाइड करता है कि हम किस तरीके से अपने फ्यूचर पे कार्य करेंगे। So students, next topic is our importance of feedback in classroom. Students, this video of your books, if you have not a book, so you can see here. Message me, so I will send you. Importance of feedback in classroom. So students, all of you understand how feedback is important in classroom. So students are essential for various ways. Formative assessment has been found to be an extremely effective tool in influencing students' achievement positively. That means
कि जब भी एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा फीडबैक देता है, बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन करता है, बताता है, तो ये क्या करता है, ये हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का कार्य करती है। सो देयर आर सम पॉइंट्स टू एक्सप्लेन, like grades should not form a part of feedback as the student will probably give emphasis to grade। इसका मतलब ये होता है कि टीचर जो हम लोगों को मार्कशीट में वो मिलते हैं ग्रेड, तो ग्रेड किसी बच्चे की डिसाइड नहीं करता, किसी बच्चे की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको डिसाइड नहीं करता है कि वो कितना बेहतर कर सकता है। Most of feedback that students receive in school from their classmates and this may not be correct। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे फीडबैक हम ऐसे अपने क्लासरूम से ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। Third is, unless the student is clear about the learning target, feedback is irrelevant। That means कई बार हम अपने फीडबैक से अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, हमको उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती है। सो नेक्स्ट इज, फीडबैक शुड नॉट end up the certain or passive, rather it should be a reflection of how the student is faring in a racing or goal। फीडबैक क्या करता है, कभी कभी फीडबैक आपको उस गोल के लिए काफी ज्यादा परेशान कर देता है जो आपने अचीव करना होगा चाहते हैं। जैसे कि आपका फैमिली प्रेशर, कभी क्या होता है आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, तब क्या होता है आपकी उस मेहनत पर आपके पेरेंट्स उतनी अच्छी तरीके से रिएक्शन नहीं देते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं जितना आपने एक्सपेक्ट किया होता है। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक। Effective evaluate feedbacks. Feedback can broadly be classified as evaluate or descriptive. There are two types of feedback: evaluate feedback and descriptive feedback. Evaluate feedback is a result of summative assessment and therefore judgmental and teach comparison with others। Evaluate feedback क्या होता है कि जहाँ पर आपको किसी से जज करा जा रहा हो, किसी से कंपेयर किया जा रहा हो, वो फीडबैक क्या कहलाता है, वो फीडबैक कहलाता है आपका इवैल्यूएट फीडबैक। सो सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। सो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक? तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक ऑन द अदर हैंड help the person understand the areas of self improvement through the specific information in the form of comments and conversation। So you can understand कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक वो फीडबैक्स होते हैं जहां पर हम अपने जिनसे हम अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी कमियों को निकाल करके उनको अच्छाइयों को देख सकते हैं। जो ये एक तरीके से जो हमारा होता है खुद हमारे लिए होता है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव नाउ बिकम अ क्विक एक्यूरेट विद योर कैलकुलेशन। यू नाउ नीड टू focus on ensuring you remember to write all the steps required in the solving the problem। That means मान लीजिए कि आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जा रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाइए, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चले जाइए। ये क्या करता है, ये आपकी कैलकुलेशन को और बेहतर करता चला जाता है। Here you see descriptive feedback। So there are two type of descriptive feedback: oral and written। So descriptive feedback and mentored above can be in the form of written comment or oral conversation। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक पहले ही बता दिया गया कि आपका वो होता है जो आपको ओरली दिया जाए, मतलब कि बोल करके दिया जाए, आपका रिटन फॉर्म में दिया जाए यानी कि लिख करके कुछ दिया जाए, जैसे कि कॉपी चेक हुई तो उसमें गुड जॉब या वेरी गुड, यू डन वेरी वेल, इस तरीके के जो फीडबैक्स होते हैं वो, या अगर हम मान लेते कि कोई टीचर आपसे बोलता है तो वो भी आपके डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में आते हैं। सो I already explained there are two types of oral feedback and written feedback। So what is oral and written you can already understand। So next is descriptive feedback in classroom। So the descriptive feedback is most powerful tool for improving student learning। Say by Black, Harishran, Lee and William in 2003। यानी कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्लासरूम इन द क्लासरूम में है, यानी क्लासरूम में जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है, ये बहुत पावरफुल सेल्फ इम्प्रूवमेंट टूल है।
how does descriptive feedback support learning? So you can see descriptive feedback does not compare. Just like you can understand evaluate feedback what it does. evaluate feedback क्या करता है, आपको किसी से कंपेयर करता है, बट डिस्क्रिप्टिव फीडबैक किसी से आपको कंपेयर नहीं करता है. नेक्स्ट इज व्हाट मेक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इफेक्टिव. Descriptive feedback is focused and specific and gives while the task is still on and there is room and time for correction. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या कराता है? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक आपके कार्य के ऊपर बिल्कुल फोकस होकर के जो कार्य किए जाते हैं और उनको बहुत अच्छी तरीके से ऑन टाइम पे फोकस कर लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है. Thus, descriptive feedback help in the solving the children what they have done well and where they have scope to still improve. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर करा देता है कि आपको किस फील्ड में कार्य करना है और क्या चीज आपकी बहुत अच्छी है. सपोज दैट कोई स्टूडेंट है जो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है लेकिन उसकी आर्ट बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फीडबैक काम करेगा कि आपकी आर्ट तो बहुत अच्छी है, इसलिए वेरी गुड एक्सीलेंट लाइक दैट, बट यू कैन इम्प्रूव ऑन योर स्टडी. सो नेक्स्ट इज specific and non-specific feedback. So student, there are two type of feedback, specific and non-specific. Specific feedback क्या करता है? Specific feedback as the name denote as denied and content. Let's work. So you can see that here. Specific feedback क्या होता है कि जब आपको किसी भी feedback से related पूरी एक्सप्लेन फीडबैक मिले, पूरी तरीके से मिले, जो जिसमें आपकी पूरा क्लियर डिस्क्रिप्टिव फीडबैक पूरा डिटेल. फॉर एग्जांपल द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ योर स्पीच वेयर वेरी वेल थॉट. इसी तरीके से अगर जो नॉन स्पेसिफिक फीडबैक होते हैं वो होते हैं जहां पर आपको पूरी डिटेल्स ना दी जाए, जैसे गुड जॉब. अब यहाँ पर स्पेसिफिक फीडबैक में क्या है, आपने किसी कार्य किया, उस कार्य में गलत की, अगर इस तरीके से बताया जाए कि अच्छा कार्य अलग और खराब या गंदा या गलत कार्य एक तरफ, तो वो स्पेसिफिक फीडबैक हो जाएगा. अदरवाइज एमएस अगर आपने कोई कार्य किया, आपको बोल देता है कि आपने अच्छा किया, यू डन गुड जॉब, तो ये आपका नॉन स्पेसिफिक फीडबैक होगा. यहाँ पर आपको चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा रही हैं. सो here is the feedback. Student, you done all the parts from the book and solve it. So session third. What is session third? Session third is barrier in communication. So in the time you can explain what is barrier. Barrier means to something, some problems to communicate each other in simple words. So, a barrier in communication is anything that comes in the way of you effectively receiving and understanding the thought, ideas or message the other person is trying to convey or communicate to you. It means barrier क्या करता है? Barrier का काम होता है कि किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आना. सीधे तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से और कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी को हम बोलते हैं बैरियर्स. सो हियर इज द टाइप ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में किस किस तरीके के बैरियर्स आप फाइंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर. सो इट्स नॉट व्हाट इज फिजिकल बैरियर. यू कैन सी द पिक्चर. Communication with a boss who is behind the closed so difficult. Here, this PDF you can read from the book and see the video carefully. So, what is physical barrier? That means अगर मान लीजिए कि आपको अपने बॉस से या अपने टीचर से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, और आपका जो टीचर है वो मान लीजिए कि एक ऐसे रूम में बैठा है जो पूरी तरीके से क्लोज्ड है, आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है और आपको वहां से बैरियर करना है. सो तब क्या करेंगे? तब वो बैरियर जो होगा वो आपका फिजिकल बैरियर होगा. तो इससे हम हाउ टू ओवरकम द बैरियर, यानी कि हम क्या ऐसा करें कि हम इस बैरियर को ओवरकम कर पाए, खत्म कर पाए. दैट मीन्स
The post may the required to the sit on friends. Next is our cultural barriers. So, what is cultural barriers? When we are sometimes going out of country and in the country, according to our purpose and many type of other regions, we are going to out of stations. So, when we are going to out of station, we meet some type of peoples. There are there are different regions. You fucked up the video. ठीक है ढूंढते हैं रुक जाओ कौन है so students your next topic is cultural barriers so sometime we are going to out of station out of country according to some reasons according to purpose of our businesses so we meet our different kind of peoples with a different kind of culture so when we meet to different kind of peoples we face lot of problem to understand to each other what is solution of that cultural barriers so how to overcome the barrier so respect the each other each others respect the each other's cultures to solve them it is a very unique method of to overcome to this kind of barrier. So next our is gender barrier. Students, in the now these days of many pupils is very good communicator will talk to same gender, communicate with the same gender. But when we communicate with another gender, we find lot of problems. That means अगर हम सेम जेंडर से बात करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन करने का बोलने का तरीका बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है लेकिन जब हम अदर जेंडर से कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है हम लोगों में थोड़ी सी एजुकेशन होती हैं शर्म होती हैं तो ये सब चीज़ें हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं सो सिंपल थिंग्स वी रिस्पेक्ट ईच अदर जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम इस तरीके की प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं सो आई वांट टू स्किप दिस काइंड ऑफ barriers so next is important language barrier so students in the these days you can find many times language barrier so take an example if your friend 1 and friend 2 friend 1 can understand Hindi very good and friend 2 understand English very good. But if friend 1 communicate with the friend 2, it is not possible because Hindi friend 1 cannot understand Hindi. So अब इस तरीके के जो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं हम उसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं तो सीधी सी बात है वी यूजिंग अ translator and we learn about the languages to communicate with each other properly यानी कि हम अपने कम्युनिकेटर कर सकते हैं या फिर हम किसी तरीके के बैरियर्स किसी तरीके की जो लैंग्वेज में हमें प्रॉब्लम आ रही है उन लैंग्वेज को सीख सकते हैं So students, next topic to your measure to become an effective communicator. In the previous video, lecture 1, I already explained this kind of things, how to become an effective communicator. So I am skip this at this time because I already explained this. If you have any problem on this topic, you can ask me in the comment section, in the my WhatsApp number. So here this is session 4. So students,
in the session 4 principle of effective communication. That means कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, हम सेशन 4 में इसी के बारे में सीखेंगे. First thing is principle of effective communication. So first point is understand yourself and your goals. यानी कि हमें बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो है अपने गोल्स को और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, समझ में आना चाहिए. अगर हम अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर हैं तभी हम किसी से कोई बात तभी हम अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. यानी कि जब भी हमें अपनी किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो हमें अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि एक्चुअली में हमारी ऑडियंस क्या चाहती है, किस तरीके का कम्युनिकेशन है. तो यहाँ पर लिखा दिस इज इम्पोर्टेंट एज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ ओनली व्हेन यू बी एबल टू decide on how best to strike a chord with them. Just like अगर आप एक ऑडिटोरियम में बैठे मान लीजिए क्लासरूम में बैठे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तभी काम नहीं चलेगा और बहुत ज़्यादा पोलाइट है तभी काम नहीं चलेगा. सो होता क्या है कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस तरीके से बैठों के साथ या बैठे हुए क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से हम अपना बॉन्डिंग मजबूत करते हैं. चूज एन एप्रोप्रिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि हमें कम्युनिकेशन करने के लिए प्रॉपर एक अच्छा सही जिम्मन टॉपिक फाइंड करना चाहिए, उसी टॉपिक पे कम्युनिकेशन करना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके उस पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं. सो नेक्स्ट वन इज यूज विजुअल्स. It means when we are communication to any other, we use more than words. We use pictures, imaginary and posters. So, in the previous diagram, previous lecture, I will show the picture. How many people use visual communication and verbal and non-verbal communication like so. अगर हम अपने कम्युनिकेशन में किसी विजुअल्स का यूज करते हैं तो वो हमारे वर्ड से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है. तो नेक्स्ट इज बी सिंपल एंड ब्रीफ. दैट मीन्स कि जब हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और उस चीज़ को या उस टॉपिक को लेकर हमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना चाहिए. इससे क्या होगा कि हम किसी भी टॉपिक को बहुत क्लियरली धीरे धीरे आसानी से उसको एक्सप्लेन करते हैं. अगर मान लीजिए कि हम बहुत तेजी से बोलते हैं, बहुत जल्दी से बोलते हैं, तो हम तो बोल के अपना टॉपिक खत्म कर देते हैं, बट सुनने वालों को उतनी बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगी. सो नेक्स्ट इज नेवर स्टॉप लर्निंग बेटर वेज ऑफ कम्युनिकेशन. दैट मीन्स कि हमें कभी भी अपनी लर्निंग को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में सीखना नहीं बंद करना चाहिए. हमें उनको लगातार सीखते रहना चाहिए. जितना हम सीखते जाएंगे उतना हम इम्प्रूव करते जाएंगे, उतना हम अच्छे होते चले जाएंगे. नेक्स्ट फीडबैक. सो इन द सेशन 2 you also read about learn about feedback. So feedback is very important when we are communicate to anyone because feedback can explain how to communicate, how to explain. So next is our next topic is our 7 C's of communication. That means each individuals means find certain factors that help make the communication effective. It means जो आपके 7 फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं आपकी कम्युनिकेशन में. सो स्टार्ट करते हैं. आपका जो कम्युनिकेशन है यहाँ पर जो 7 C's है इसमें आपका ओरल भी आता है, रिटन भी आता है और विजुअल भी आता है. सभी तरीके के कम्युनिकेशन इसमें आते हैं. तो फर्स्ट इज कंप्लीटनेस. दैट मीन्स पूरी तरह से कंप्लीट यानी कि संपूर्ण. सो द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड इन इटसेल्फ एंड contain all the relevant information. That means
कि जब भी हम किसी टॉपिक को लेकर के कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई टॉपिक लेकर के हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसको पूरी तरह डिस्क्राइब करना चाहिए एक एक चीज को। ऐसा नहीं कि कोई चीज बताई कोई चीज छोड़ दी। इससे क्या होता है कि आपका जो होता है वो हाफ रह जाता है और कम्युनिकेशन उतना बेहतर बिल्डअप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। Next is concreteness. So what is this? When a message is communicated, it must have concrete information that backed by the fact and figures. When supported by data, nothing is left to the imagination of the listener, and there is no scope for misexpression. That means next is concreteness. So what is this? When a message is communicated, it must be concrete information that is backed by the fact of figures. That means कि जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। When supported by data, nothing is left that imagination of the listener, and there is no scope for misinterpretation. That means कि जब हम अपना कम्युनिकेशन खत्म करें तो उसके बाद जो हमारे लिसनर है उनको सोचने के लिए या सोचने के लिए कोई चीज़ ना रह जाए कि वो कुछ चीज़ को लेकर के थिंक करें और कोई भी डाउट उनको ना हो। नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी। So students, your next point is courtesy. Courtesy. So what is courtesy? That means so respect to your communication. It means कि जब भी हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन को हमें प्रॉपर्ली करना चाहिए और उसको कहीं बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। So your audience is beyond to listen better and your communication will be more effective। यानी कि जब आप किसी कम्युनिकेशन की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके जो लिसनर होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और इससे क्या होता है कि आपका जो भी टॉपिक है, जो भी कम्युनिकेशन टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है और आपका जो रिसीवर है वो भी बहुत अच्छी तरीके से उसको सुनता है। सो नेक्स्ट इज करेक्टनेस। सो करेक्टनेस अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको इसके मतलब से ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज करेक्टनेस। सो करेक्टनेस इज कि आपको योर लैंग्वेज नीड नॉट बी फ्लोइंग बट मेक श्योर इट इज ग्रामेटिकल करेक्ट। दैट मीन्स कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हाँ जो आपकी लैंग्वेज, जो भी आप जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं या जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस लैंग्वेज का जो भी ग्रामर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वो गलत होगा तो कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लियरिटी। सो व्हेन यू कम्युनिकेट टू एनीवन, क्लियरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज कि जब भी हम कोई टॉपिक क्लियर से लेकर के उसको कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर वो क्लियर नहीं है उसको लेकर के हम खुद कंफ्यूजन में है तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को अपने रिसीवर को किस तरीके से क्लियरिफाई करेंगे। तो दैट मीन्स कि जब भी हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम पूरी तरीके से क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो, कोई इशू ना हो हमारे मन में लेकर के उस चीज को। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। सो व्हाट इज be brief and compress you in what you are trying to say without overlooking the other CS of effective communication. Messages are non-repetitive and save on cost and time. So that means कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हमने पीछे पॉइंट्स में पढ़े हैं, इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन जो होगा, आपका एक्सप्लेनेशन जो होगा बहुत लंबा होगा।
नेक्स्ट है कंसिडरेशन. सो व्हाट इज नो योर ऑडियंस वेल एंड वियर देयर shoes. Wear their shoes. This will help you be considerate toward them. They will automatically relate to you, making your communication effective. That means कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये देखिए कि आपके जो वे रिसीवर हैं वो कितनी बेहतर तरीके से आपको कंसीडर कर रहे हैं, कितनी बेहतर तरीके से आपको सुन रहे हैं, ये कितना बेहतर तरीके से आप उनको अपनी चीज़ों को ट्रांसफर कर रहे हैं, समझा रहे हैं. ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कम्युनिकेशन करते हैं. इसको हम दो तरीके से करते हैं, क्रिएटिविटी एंड क्रेडिबिलिटी. सो क्रिएटिविटी यानी कि आप कुछ एक ऐसा अनोखा सा कुछ करके देते हैं जो उन्होंने पहले कभी ना देखा हो, तो वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं. उन्होंने उस चीज़ को ना सोचा किया ना हो तो वो उस टॉपिक को लेकर के इंटरेस्टेड होंगे, जो नया सीख रहे होंगे. सो इज अ प्लेस वेयर यू बिल्ड अप द एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट फ्लो. दैट मीन्स कि जहाँ पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका एटमॉस्फेयर जो है, वो जगह जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत बेहतर तरीके से होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर होनी चाहिए. So communication, the audience should thought your tone and positive skills, believe that you are on true and correct information. That means कि आपके जो ऑडियंस है, आपके जो रिसीवर है, उनको इस बात को आपको लेकर के ये भरोसा होना चाहिए कि जो हमारा सेंडर है वो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है और सही है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. सो here we see your next session is 5. So next session of writing skills, it is your grammar work. So student, you can read from the book. If you don't if you have any kind of problem in the this writing skills, you can ask me, otherwise I will skip this session writing skills. So I hope you understand the video, understand the topic. I request you, all of you, in the last of video, you do not skip the video. Whenever you skip the video, you cannot understand what the teacher say. So you watch the video clearly, full. So I hope you like the video. So keep watching the video and keep studying. Thank you.